ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆଇପିସି, ସିଆରପିସି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟି ନୂଆ ଆଇନ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଫିଚର ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଆରପିସି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ୍ 484ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏଥିରେ 531ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ନୂଆ ଫିଚର ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରାଏଲକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପିଡି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କି ଫିଚର୍ସ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଏଫଆଇଆର୍। ପୁରୁଣା ଏଫଆଇଆର୍ ଠାରୁ ଇଏ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜିଂ କରାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଇ ଏଫଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଇ ଏଫଆଇଆର୍ କ'ଣ ନା ଘରେ ବସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରାଯାଇଛି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ସେଠି ଯାଇ ସାଇନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍। ପୂର୍ବରୁ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା, ପୂର୍ବ ସିଆରପିସିରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ସେଇ ଥାନାର ଜୁଡ଼ିସିଏସନ୍ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଥାନା ବାଲା ବାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିବାକୁ। ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ଥାନା ଜୁଡ଼ିସିଏସନ୍ରେ ଏ କେସ୍ଟି ଆସୁନି, ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ତାପରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଥାନାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ଯାହା ଜୁଡ଼ିସିଏସନ୍ରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଇ ଏଫଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଫଆଇଆର୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଫିଚର ହେଉଛି ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ ପୋଲିସ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ୱିଦିନ୍ 90 ଡେଜ୍, ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାର ୱିଦିନ୍ 90 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ ଯେ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁ ଯାଏ ଗଲା। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମ କରିବ ତା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁ ଯାଏ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରେପ୍ ଅଫେନ୍ସ, ପୋସ୍କୋ, ଚାଇଲ୍ଡ ରେପ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ 60 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ରହୁଛି ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ବିଷୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିବେଟେବୁଲ୍ ଟପିକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଥିଲା 15 ଦିନ ପାଇଁ, 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ 19 ଡେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା 15 ଡେଜ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା ତା 15 ଡେଜ୍ ପରିକି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 19 ଡେଜ୍ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ବେଲ୍ ଡିନାଏ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ୍ ଟପିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟା 15 ଡେଜ୍ରୁ 19 ଡେଜ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ହେଇଗଲା। ଆନଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା ରେପ୍ ଅଫେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାରୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେହି ସବୁ କେସ୍ରେ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଦାଖଲ କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର। ଅନଦର ଡିବେଟେବୁଲ୍ ଟପିକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ସ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଆରପିସିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ର ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଲା କେସ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆକୁଜିର। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି 45(3)ରେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଡ୍ରଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ, ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଏବଂ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्म्स आमुनेशन केस रे आपण आकुज को हैंडकप पकई परिबे। एटा डिबेटेबल टॉपिक गोटे जो सेक्शनटा ऐड करा जायछि। पुराना सीआरपीसी अनुसार जेतोले मजिस्ट्रेट को प्रेयर करथलु कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पई सेतोले जनरली कंप्लेंट प्रेयर करथलु, किंतु वर्तमान सेटा को चेंजिंग करा जायछि। नुवा बीएनएसएस रे 175 क्लॉज 3 रे जोटा आसुछि कि गोटे एफिडेविट गोटे वर्ड एथिरे ऐड करा जायछि, कारण सेतोले बहुत भाबे मिसयूज हैला। जो 150 क्लॉज रे जेकोनसी लोक जाई सीधा कंप्लेंट करथले, पुलिस रे एफआईआर न दे सीधा कोर्ट रे गोटे कंप्लेंट फाइल कर दोथले एफआईआर रजिस्ट्रेशन पई, किंतु से को गुरुत्व रखी नुआ आईन रे
टिके परिवर्तन कराए आफिडेविट वार्डटा को आड कराई जो व्यक्ति कंप्लेन फाइल करिए से गोटे कोर्टर आफिडेविट देबे जे मु प्रकृतर जाइली पुलिस की एफआईआर देइथली तापरे एसपी के जाइके स्पेशल पोस्ट माध्यम जोटा करा जाए सेटा करिकि तापरे जेहेतु एफआईआर रजिस्टर होइछने मु आसी कोर्टर आश्रय नउ सेति गोटे आफिडेविट गोटे नुआ वार्ड यूज कराऊँगी से सेक्शन एथर आउ गोटे नुआ फीचर जजमेंट रिलेटेड आसी आर्गुमेंट सरियार 30 दिन मध्य विदिन 30 डेज जजमेंट प्रकाश पाइब यहाँ गोटे टाइम बाउंड पीरियड कराई जेहेतु शीघ्र यही बीएनएसएस रे स्पीडी ट्रायल जेहेतु व्यवस्था कराऊँगी बर्तमान आम डिस्कसन करवा जोटा पूर्व आईपीसी थिला बर्तमान से भारतीय न्याय संहिता रूपे कार्यकारी हम पूर्व आईपीसी थिला 511टा सेक्शन बर्तमान जो बीएनएस होती 358 सेक्शन किंतु केतटा सेक्शन क्लब कराई छोटा है कि जना पड़ी 511 358 कि बेसी किसी रिपिल होनी क्लब कराई ये जो भारतीय न्याय संहिता ए इकोनॉमिक्स ऑफेंस उपरे टिके बेसी गुरुत्व दिया पूर्व इकोनॉमिक्स ऑफेंस एत बड़ा होना कि बर्तमान सोसाइटी की चाहिए इकोनॉमिक्स ऑफेंस जेहतु बहुल परिमाण है से विभिन्न सेंटेंस सब छोट छोट ऑफेंस सब इकोनॉमिक्स ऑफेंस रे सब ऐड कराई मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर बर्तमान जोटा डिबेट रे बर्तमान अच्छी से हिट एंड रन टाक बर्तमान सरकार किसी दिन स्थगित रखिंट ए जो पनिशमेंट होती 10 इयर्स पनिशमेंट विथ फाइन जोटा कराई बहुल हो जाऊँगी बाली साधारण विरोध हबार बर्तमान यहाँ को स्थगित रखाई किंतु आउ गोटे भल सेक्शन एथर अच्छी मब लिंचिंग बा भिड़ हिंसा आगुरी लोक मैंने भिड़े हिंसा करी सामूहिक भाव निजे आईन व्यवस्था को हाथ को लेकिन पिटी पिटी लोक को हत्या करते गचरे बांधि दौले साधारण कौट दुर्घटना है ड्राइवर को बांधि पकाउते अटाक करते पिला चोरी सन्देह लोक बाड़ाबाड़ी करते बेले बेले मृत्यु भी होता यही सबको ऑफेंस गुड़ को देखिए सरकार ये जो भल सिस्टमटा आनी जो सेक्शनटा ऐड कर मब लिंचिंग यार कौन यार पनिशमेंट कौन अच्छी ना लाइफ इम्प्रिजमेंट रोचे और फांसी रोचे अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन बीएनएस देखा पाइबे टेररिस्ट एक्ट विषय पूर्व आईपीसी कौन सेक्शन नाला पनिशमेंट नाला किंतु बर्तमान सेटा पूर्व उपा लॉ अनुसार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट रे सेटा चलुला किंतु बर्तमान सेटा कौन कराई टेररिस्ट एक्ट गोटे सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट गोटे ऐड कराई आर पनिशमेंट कौन होची ना 5 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजमेंट रोची टेररिस्ट एक्टा एठी भी गोटे डिबेट एथरे आसुची कौन ना ये गोटे कौन टेररिस्ट एक्ट भी गोटे हेले सेटा उपा लॉ रे कार्यकारी हबो ना टेररिस्ट एक्ट रे जो बीएनएस रे कार्यकारी हबो सेटा पुलिस डीसीपी के एसपी लेवल ऊपर ऑफिसर को डिसीजन पावर दिखाई से किभली भाव कार्यकारी करेंगे उपा लॉ रे आनिबे कि बर्तमान जो टेररिस्ट एक्ट है से लॉ अनुसार कार्यकारी करेंगे यहाँ गोटे डिबेटेबल टॉपिक ये जो बीएनएस रे देखा मिले गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन बीएनएस रे ऐड कराई सेक्शन 69 जोटा कि पूर्व कौन होता है ना फॉल्स प्रोमिस मैरिज करी जो सेक्सुअल यौन उत्पीड़न करते सेक्सुअल इंटरव्यूट करते जो तुम विवाह करी फॉल्स प्रोमिस करी बाधा करके जो मैरिज करते से कौन पनिशमेंट नाला रेप ऑफेंस से आसला किंतु एथिरे बर्तमान जो नुआ बीएनएस अच्छी से गोटे सेक्शन ऐड कराई सेक्शन 69 ने जदि फॉल्स प्रोमिस करी निज नाम गोपन रखी गोटे महिला सह संपर्क रखती तेज तुम्हें पनिशमेंट हम दंड पाइब जार दंड 10 इयर्स पनिशमेंट जो 5 टाइप रो पनिशमेंट आम जानते जथा लाइफ इम्प्रिजमेंट रोला डेथ पेनाल्टी रोला फाइन रोला प्रॉपर्टी अटैच होता सिंपल होता एथरे गोटे नुआ कम्युनिटी सर्विस सामाजिक कर्म गोटे पनिशमेंट बर्तमान एथरे गोटे नुआ ऐड कराई विभिन्न पेटी ऑफेंस छोट छोट ऑफेंस रे सामाजिक कर्म करने जज दंड दे पारे यहाँ गोटे कराई पूर्व जमी पुणे कहला ट्राफिक हाविलदार को जाई साहाय्य कर गछ लगेब मंदिर जाई सफासफी कर जो पेटी ऑफेंस पूर्व जजमेंट केतेटा होती ये कम्युनिटी सर्विसटा बर्तमान बीएनएस रे नुआ करी जो पनिशमेंटा बर्तमान नुआ देखा पाइबे बीएनएस रे आउ एक देखा पाइबे जोटा राजद्रोह अपराध थिला सेडिशन जोटा कहला 124 से रिमूव कराई बर्तमान से देशद्रोह रूपे गणना कराऊँगी राजद्रोह वार्डटा को संपूर्ण रूप रिमूव कराई देश विरुद्ध जब कौन ऑफेंस कले 7 इयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट दंडर व्यवस्था कराई बीएनएस रे पूर्व आईपीसी 377 आडल्टरी जो दुईटा ऑफेंस थिला जो अननेचुरल सेक्स एनाल सेक्स जो 377 जोटा थिला आडल्टरी थिला ए दुईटा को संपूर्ण रूप रिमूव कराई जदिव 2018 सुप्रीम कोर्ट यही 377 उपरे गोटे जजमेंट देइथिले किंतु बर्तमान ये जो नुआ आईन या संपूर्ण रूप रिमूव कराई फल यहाँ गोटे डिस्कसन होची जो इंडियन जो लॉज बर्तमान अच्छी आर नॉट जेंडर न्यूट्रल माने मेन जदि रेप शिकार है कि ट्रांसजेंडर माने रेप शिकार हेले तापई कौन ऑफेंस जदि कौन से ऑफेंस ऐड कर बर्तमान बीएनएस देखिबो ताले आम सेटा देखिबा ग्रीवियस हर्ट बर्तमान मेन को जो रेप ऑफेंसटा जोटा थिला सेटा बर्तमान नहीं अनदर नुआ आईन जोटा हाई इंडियन एविडेंस एक्ट बदल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम
इंडियन एविडेंस रे किसी सेमती वर्धन चेंजेस करा जायनी जो नुआ आईन आसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एथिरे केवल गोटे चेंजेस आसी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रे डिजिटल रेकॉर्ड्स ऐड कराई जे जो वर्तमान जेहेतु डिजिटल युग डिजिटल एविडेंस गुडी को जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गुडी को डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रे सेम इफेक्ट रहिबो जेमती पेपर एविडेंस गुडा रे जेमती सेम रहउची एइभली भाबे ए तीनिटी नुआ आईन जो जुलाई 1 रु कार्यक्रम हबो एइभली भाबे किछि नुआ फीचर्स ऐड करा हाइची जोटा त्वरित न्याय लोक मैंने स्पीडी ट्रायल सरकार व्यवस्था करचंती एवं डिजिटाइजेशन माध्यम किभली आम सुफल पाइपर ता व्यवस्था कराई ये गोटे कथा कही रखुची लोक मैंने भावुं जे पुराणा आईन संपूर्ण रूप विलोप है नुआ आईन कार्यकारी हम किंतु ताहा नुहे पुराणा आईन जुलाई 1 पूर्व जिते अफेन्स होती कोर्टे पुराणा आईन अनुसार ही ट्रायल चलो जुलाई 1 पर जिते अफेन्स होती नुआ आईन जाई ट्रायल चलो तेणु बर्तमान पुलिस यह एक बड़ समस्या नुआ आईन पुराणा आईन की मिसेकी बर्तमान आईन व्यवस्था को चलेबे कोर्ट नुआ आईन बहुत तर्जमा कर नुआ नुआ प्रेसिडेंट आसो नुआ नुआ जजमेंट आसो जो कतोटी इंपोर्टाट टॉपिक अच्छी जता हैंडकप उपरे पुलिस कस्टडी उपरे बेल उपरे यही जो कतोटी मानविक जो मौलिक अधिकार क्षीण होची किछि किछिटा ऑफेंस सेक्शन जो ऐड कराई तर्जमा हम आशा करुच्ची जो नुआ आईन भारतीय मान द्वारा प्रथम थर पर भारतीय स्वाधीनता इतिहास कार्यक्रम होगा जाऊँगी सफलता हासिल करिबो।